Hi everyone. Hi Tanish. This is Arpita Tripathi from Varanasi, working as a data engineer at Visa. And I previously worked as a data engineer in CSG Internationals, and I completed my bachelor's degree in computer science and engineering from Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal, in 2024. Yeah, so I have roughly around 1.5 years of experience till now. Apart from all these domains like software and all, what do you think that what is the importance of data and these kind of domains? There are multiple domains and SG or software engineering that mostly every students or people know about it. But data engineering or there are multiple domains in this field like data engineering, data science, or data analyst. So in this AI era, I feel like data engineering is the oil for AI to run upon. So data is something that is will be huge. It will grow in exponential form in the future, and it is really required for the AI use cases as well. So data is always like important for business. I can say the business or the companies that work on it. So yeah, this is a field that is different from SG. It's like suppose there is a reporting need, or you want to see how your business is growing, so you'll have that data collected, right, like from your system. And to work on that, like you will get those data engineers hired to present that in a format that can be consumed by the business leaders. And data analysts are the people who perform different I can say operations on that. Like you can have the aggregations, the percentage, and everything. Like it's just like calculations over that perfect data that you get. And data scientists are similar to data analyst, but they train the model. If you suppose you have an AI model, and that data can be feeded into that AI system or the ML model that you have, and then you can generate your insights out of that model, so that you can predict the future needs as well. So data, I can say, it is a backbone for now, like for the I can say the systems that we have or the businesses that run. And in future also, like for the AI system that you interact with, data will be important. So this is all about like data engineering. The core work of data engineer is to bring it in a format that can be used by further uh, I can say the data analyst or data scientists. So apart from like these domains, just say data analyst, like what is the difference between like most of the different domains like data analyst, data scientist, and like data engineer, all these three specifically? See, if I say like data analyst जो होते हैं, it's like they front end पे काम करते हैं. Like suppose you are the business person, and तुम्हें देखना है कि how your company is performing. Or let's take an example of like you have a payment system and architecture. वहाँ पे बहुत सारे transactions हो रहे हैं. I can take an example of Visa itself. So you want to know कितने लाइक यूर अ क्लाइंट. सपोज तुम कोई क्लाइंट हो और तुम वीजा का पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, और वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. तुम्हें देखना है कि वहाँ पे फ्रॉड कितने हो रहे हैं, राइट. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस पॉइंट फॉर यू, राइट. तुम्हें देखना है उस चीज में. सो बेसिकली डेटा इंजीनियर जो होंगे वो तुम एग्जैक्टली उन चीज को नहीं देख सकते. इट विल कम इन अ वेरी वेरी लार्ज रोज एंड काउंट्स में आता है वो. सो यू कैन नॉट रीड एंड गो थ्रू दैट टेबल, राइट. और वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा कि यू कैन अंडरस्टैंड इट. So data engineering, basically they bring that data into a format that can be used as an information. So वो information तुम use कर सकते हो. So that is what data engineering will do. And data analyst is just he'll perform some operations on that, further operations. Like he'll tell you कितने counts fraud transactions के कितने counts हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, किस region में हो रहे हैं, या फिर किस location पे हो रहे हैं. Like there are multiple factors, right. So वो data analyst बताएंगे. और if you're a data scientist, if you have a ML model, you have something, so you can feed that data. You can train your model on that particular data sets to generate or predict futures कि यहाँ पे इतने transactions हो रहे हैं. So what is there any pattern, you can see any pattern कि okay इस दिन पे transactions होते हैं या फिर इस account से होते हैं. So this is a use case. So I hope this makes you understand the difference. So it's like a backend engineering for some
data use cases, I can say. When you started like in technology and all, like when did you feel that, yeah, this is the domain that I want to get into specifically, and this is what I want to do, like for data? I never was like I was never more interested in data engineering. Like college में सबको ये software engineering के लिए prepare करते हैं. मेरी पहले जब I did internships as well, those were in software engineering as well. Like वहाँ पे React and all ये सब use किया है. So it's not like मैंने कभी data पे या फिर data engineering या फिर data domain पे काम किया है specifically mentioned. So it's like कि मेरा जहाँ placement हुआ like from the college, so I got into that team itself जो डेटा पे ही काम करती थी, क्योंकि वी हैड अ पेमेंट सोल्यूशन देयर एज वेल इन माय लास्ट कंपनी, सो उन्हें ये सब देना होता था. सो देन आई गॉट टू नो ओके दिस इज अ सेपरेट फील्ड, इट इज़ नॉट लाइक एसडी फील्ड बट इट इज़ अ ह्यूज फील्ड एज वेल. इसमें भी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड डेटा को वो ऐसा देखने में लगता है बट इट्स रियली टफ टू अंडरस्टैंड इट, एंड उसको एक आई कैन से प्रॉपर फॉर्मेट देना या फिर यूजेबल तरीके में लाना, इट्स डिफरेंट. सो या देन आई वर्कड ऑन इट, सो आई बेसिकली डेवलप्ड एन इंटरेस्ट. सो इंटर्नशिप के टाइम ही आई डिसाइडेड कि ओके दिस field is good, I can continue further in it because I had an experience also over it. So that's why I continued it further. So कोई भी fresher है, they can also, it's not like आप restricted हो. ये fields mostly experience demand करती हैं. It's not like freshers के लिए थोड़ा difficult है to get into it. But if you get some internships, even as a data analyst or a data scientist or data engineering, it is well and good. You can go into this field and you can switch among these fields. Like आपको data scientist, आपने data analyst में किया, लेकिन you are like more keen towards data scientist, so you can further switch into that domain. और अगर आप data scientist हो तो आपको data engineer बनना है, data engineer हो, data analyst बनना है, तो you can switch between these roles. It's easy to switch. So yeah, एक फैक्टर ये भी है इसका कि आप स्विच कर सकते हो. एंड मिडिल भी होते हैं, लाइक यू विल सी सम टाइटल्स एट डेटा इंजीनियर एनालिटिक्स. सो इट्स लाइक कि वो मिक्स होता है, वहाँ पे आपका सोल पर्पस डेटा इंजीनियरिंग नहीं होगा, थोड़ा एनालिटिक्स का भी पार्ट होगा. सो इट्स लाइक थोड़ा आई कैन से इंटरसेक्शन बिटवीन दीज डोमेन्स है. What happens is like अगर कोई बहुत नया है, like somebody is starting out, okay, and as you said कि fresher के लिए उतना घुसना भी easy नहीं पड़ता कि मतलब आप directly full time role में चले जाओगे, interviews मिल जाएंगे. तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो जैसे उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन करने चाहिए? फ्रेशर्स के लिए लाइक इफ आई से अगर आप टोटली इन कॉलेज में हो, सो यू वोंट बी हैविंग एनी एक्सपीरियंस टू बैक यू. सो मोस्टली वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे. आप आई कैन से कोर्सेरा में बहुत अच्छे कोर्सेज आते हैं, यूडेमी में भी कोर्सेज आते हैं. वो अगर आप करोगे, डेटाब्रिक्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो भी आप ले सकते हो. सो इनसे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. और यूट्यूब में भी फ्री रिसोर्सेज काफ़ी हैं, मतलब देर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओवर देयर. सो आप उन टेक स्टैक्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. जैसे एज्योर पे या फिर AWS पे आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आप उन सब सिस्टम्स का भी यूज़ करके लाइक क्लाउड पे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, स्मॉल डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हो. सो यू हैव ऑल दीज रिसोर्सेज, आप किसी को भी लेके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. एंड बेसिकली आपको पाइथन आनी चाहिए. पाइथन इज इंपॉर्टेंट एंड सीक्वल इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक आई कैन से इवन द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. सीक्वल में आपका हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए. लाइक आपको सीक्वल्स में सीटीज कैसे लिखते हैं, जॉइंस कैसे लिखते हैं, या फिर केसेस कैसे लिखते हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि दैट इज द वे यू कैन क्रैक इंटरव्यू. विदाउट सीक्वल देयर इज नो फर्दर एंट्री. सो सीक्वल आना चाहिए. एंड सेकेंड इज DSA में आपको लाइक स्ट्रिंग्स, एरे, स्टैक क्यू, आई कैन से टिल DP तक आपको आना चाहिए. मीडियम टू मीडियम हार्ड. ग्राफ मोस्टली मैंने नहीं देखा, लाइक इट्स नॉट इवन आस्क्ड. सो गुड कंपनीज दे गो फर्दर, लाइक DP तक में भी जा सकती हैं. मोस्टली अगर मिड लेवल की कंपनी है, सो दे लास्ट मोस्टली ऑन स्ट्रिंग एंड एरे. सो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको उसमें आने चाहिए. सो दैट इज सेकंड पॉइंट. एंड प्रोजेक्ट्स, या प्रोजेक्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करना कि लाइक व्हाई यू आर डूइंग दिस और व्हाई यू आर यूजिंग पर्टिकुलर टेक स्टैक. एंड अभी जो डेटा प्रोसेसिंग या बिग डेटा का कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऑन बिग डेटा, वो आपको आने चाहिए. स्पार्क इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि बहुत पूछा जा रहा है, इवन फ्रेशर लेवल पे भी पूछा जा रहा है. तो स्पार्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. तो वो भी आप पढ़ लोगे तो इट्स better कि you can tell it why it is used. So Spark is another technology. So आपको थोड़े ये चीजें like you should go through. So it will help. So like the people who are like
planning to switch from like different domains. Suppose somebody is Mhm. in non-tech or somebody even is in software engineering, जो कि Mhm. मतलब थोड़ा सा related नहीं है. So Mhm. when they are giving interviews, people may ask कि आप इस रोल में क्यों आना चाहते हो. That is Mhm. one question जो कि normally पूछा ही जाता है अगर आप एक Mhm. डोमेन से दूसरे Yeah. डोमेन में जा रहे हो. See, like ये लाइक क्वेश्चंस मोस्टली ये आएंगे बिहेवियरल या मैनेजरियल राउंड में. उसके पहले टेक्निकल राउंड्स ही होंगे जिसमें आपको अगर वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक अगर आपने SQL एचएस बताया, पाइसपार्क और ये सब क्लियर किया, सो आप टेक्निकली स्ट्रांग हो उतना, सो दे वोंट गो कि लाइक वहां तक अगर आपने क्लियर कर लिया तो इट्स लाइक आपको आता है अच्छे से, आप उस पर काम कर सकते हो. सो कैन लेटर से लाइक वन थिंग इज कि आप अपने रिज्यूमे में अपना रिज्यूमे वैसे पॉलिश करो और अपना प्रेजेंट ही वैसे करो, क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैपेंस लाइक आपका सॉफ्ट टाइटल एसडी है, लाइक मेरा भी टाइटल एसडी ही था और आप किसी और डोमेन में रह सकते हो अभी भी, लाइक इन माई करेंट कंपनी एज वेल. इफ यू हैव एसडी टाइटल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग योर टाइटल इज, बट यू कैन स्टिल वर्क एज अ डेटा इंजीनियर. आपका काम डेटा इंजीनियर जैसे होता है. सो यू कैन टेल दिस एज वेल. यू कैन पोर्ट्रे योर ऑल ऑफ प्रीवियस वर्क, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको अपने लाइक एक्सपीरियंस में दिखा सकते हो. सो वहाँ पे क्वेश्चन की चांसेस ही कम होंगे कि वाई यू वांट टू स्विच इनटू दिस रोल. इवन इफ दे आस्क यू कैन से लाइक एआई का बैकबोन है डेटा. इफ डेटा इज नॉट गुड, डेटा की बहुत डिमांड होगी, डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है. सो वहाँ पे देर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर पीपल टू वर्क ऑन इट एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. सो यू कैन मेंशन दैट वे एंड इवन यू कैन से लाइक कि एस डी डेटा इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है एस डी से. So you can say like you are more interested over this data field, which is not like equivalent to software engineering. And you can further explain it. In these kind of like data like domains, like companies specifically visa, क्योंकि आपने visa के interview किया, तो interviews में क्या मतलब rounds होते हैं, which are the rounds that are taken one by one? First is like you will, if your resume is shortlisted, first resume shortlisting होती है. So it's like आपको resume थोड़ा tailored करना होगा. Whichever company you're applying, make sure कि आप थोड़ा resume उनके requirement से tailor करें. And for then after if it is shortlisted, you will get an HR call and you'll get an OA link, assessment link आएगी. So if you and OA में basically like depends on years of experience. If अगर हम 1 to 3 years of experience में, so it's like DSA questions you'll get. So DSA पूछेंगे. And if you are more experienced, तो वहाँ पे थोड़ा more domain specific questions आ जाते हैं, तो उधर पे वो पूछते हैं. And अगर आपने OA clear कर लिया, so after clearing the OA, you will have two technical interviews round and one managerial round. So first technical interview round में it's like कि आपको वो like आपको data frames पे, मतलब मेरा जो specifically हुआ था, like it was like DSA and SQL और data frame operations mix था. So उन्होंने कुछ questions SQL के दिए, which was easy to medium, not really tough. और data frames के questions थे, again those were easy to medium थे. और DSA का question medium था. It was a proper lead code question, तो वो medium question था. So they'll ask on this and थोड़ा वो experience पे बात करेंगे. They'll ask you like what you worked on, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बताना होगा कि आपने क्या use किया. So that's why I said like आपका थोड़ा जो भी tech stack है तो वो थोड़ा मैच करना चाहिए. मोस्टली स्पार्क पे वो पूछेंगे. स्पार्क इज लाइक बूमिंग टेक्नोलॉजी जो सब कंपनीज यूज कर रही हैं फॉर डेटा प्रोसेसिंग. सो स्पार्क में आपको आइडिया होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई सेड लाइक कि आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट या एक्सपीरियंस थोड़ा उस पर टेलर्ड होना चाहिए. तो हडूप जो कि लेगेसी सिस्टम बेस्ड है, तो वो भी आप बता सकते हो अगर स्पार्क पे. सो इट इज़ वेल एंड गुड, तो आप उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करोगे. एंड देन सेकेंड राउंड वॉज अगेन ऑन लाइक SQL. यहाँ पे SQL के उन्होंने हार्ड क्वेश्चंस पूछे थे. सो 2 क्वेश्चन पूछे थे. एक आई वॉज एबल टू क्रैक एंड अनदर वन वॉज लाइक I was not able to completely tell it. And एक और DSA का क्वेश्चन I was asked and थोड़ा एक्सपीरियंस पे पूछा. वहाँ पे थोड़ा लाइक इट वॉज एंड पे एक्सपीरियंस पे पूछा कि ओके व्हाट आई वर्कड अपॉन. ऑन रिज्यूमे से ही पूछा मोस्टली जो भी मैंने मेंशन किया था. So yeah, अगर आप AI का भी थोड़ा mention करोगे like you build something or you integrated something with AI, so well and good, because now every other company wants something on AI. So that is also good. And the third round was with my hiring manager. So it was like
ही कम्प्लीटली, इट वॉज नॉट टेक्निकल, इट वॉज लाइक बिहेवियरल राउंड. सो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा उस पर भी पूछा लाइक प्रोजेक्ट क्या किया. सो ही वॉन्टेड मी टू एक्सप्लेन एंड टू एंड लाइक what was the use case, what I worked upon, what were the challenges, and what was the outcome, and who were the users or the users of that solution. So वो पूछा and behavioral questions कुछ थे. So this was the process. So people think that this is very very complex. Like mostly बाहर से तो at least maths and all, it is very complex. Yeah. So what do you think, like ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड लोग ही हो सकते हैं या बाकी लोग भी जा सकते हैं? No. Mathematics oriented is mostly for data scientist. Data scientist में वहाँ थोड़ा सा आपको statistics आनी चाहिए, वहाँ पे it is required. For data engineering, it's not like that. इट्स नॉर्मल, लाइक आप जैसे बाकी डोमेन प्रिपेयर करते हो वैसे आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो. थोड़ा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक्स आपको करने पड़ते हैं, तो इट इज़ रिक्वायर्ड देयर. यहाँ पे तो आपको लाइक डेटा प्रिपरेशन करनी होती है, तो मोस्टली यहाँ पे स्पार्क पे क्वेश्चंस होते हैं. सो वो मेन टेक्नोलॉजी है, उसका स्पार्क आर्किटेक्चर क्या होता है वो आपको आना चाहिए. स्पार्क प्रोसेस करता है मल्टीपल क्लस्टर्स पे, तो आप उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. तो मोस्टली स्पार्क्स पे क्वेश्चन होते हैं. स्टैटिक्स थोड़ा डेटा साइंस में रिक्वायर्ड होता है. सो कोई भी घुस सकता है थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा. कोर जो टॉपिक्स होते हैं अगर आपने वो कवर किए, सो इट्स इजी फॉर एनीबॉडी टू क्रैक इट. काफी लोग होते हैं ना जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, और क्योंकि YouTube और ये सब पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या है, स्ट्रक्चर नहीं होता है. तो आप ऐसे कोई कोर्सेज या सर्टिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हो जो कि हाँ एक बंदा है जो जॉब कर रहा है तो उसको चाहिए कि हाँ भाई डेटा में कुछ करना है, और या फिर कोई बंदा है जो कॉलेज में है, उसको पता है कि भाई मुझे पहले ही टाइम से ट्राई करना है कि डेटा में हो जाए, इवन इंटर्नशिप्स भी मिल जाए तो भी, क्योंकि कॉलेज में तो इंटर्नशिप मिलेंगे मोस्टली. तो अगर वैसा है तो बंदे को कोई सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स जो कि स्पेसिफिकली उस डोमेन में उसको एंट्री करवा दे, 10 जगह उसको हाथ ना मारना पड़े. बेसिकली कोर्सेरा पे कोर्सेज रहते हैं. मैंने स्टार्टिंग में डेटा एनालिस्ट के लिए रेफर किया था. इट्स एन IBM कोर्स, IBM का कोई कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का. उसमें कोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स मॉड्यूल मतलब प्रॉपर मॉड्यूल्स होते हैं. सो दैट a college student can refer. और the other ways कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखो, उनका रोड मैप देखो. रोड मैप ऊपर ऊपर से सब सेम ही होता है. सो एक मनीष कुमार का अच्छा चैनल है, वो देख सकते हो. वो उसने काफ़ी सारे अलग अलग सेट्स बनाए हैं जिनको हिंदी आती है, लाइक दे कैन स्टडी इन हिंदी. सो उसने सेट्स बनाए हैं, उसने पाइथन के सेट्स बनाए हैं, उसने स्पार्क के सेट्स बनाए हैं, मतलब पूरा प्लेलिस्ट है उसकी. सो वो रेफर कर सकते हो, उसका पूरा रोड मैप है. इट्स अ गुड रोड मैप, मैंने भी रेफर किया है. सो वो एक अच्छा रोड मैप है उसका. एक अल्फाक अहमद करके है, उसने स्पार्क की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन पे. सो वो अच्छा डोमेन है. और पाइथन इज द मेन, पाइथन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और सीक्वल आना चाहिए. अंकित बंसल का सीक्वल बहुत अच्छा है. सो मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, वेंट ऑल ऑन यूट्यूब, क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी एक से रेफर नहीं करती, मैं मल्टीपल लोगों का रेफर मैंने किया है. इट्स नॉट लाइक कि लूप में रेफर करो, आप सेम चीज़ 4 जगह देख रहे हो. इट्स लाइक कि आप सबका थोड़ा थोड़ा देखो कि ओके आपको इनका पैटर्न पसंद आ रहा है पढ़ाने का. यूडीमी में काफ़ी अच्छे कोर्सेज होते हैं, यू कैन रेफर एनी ऑफ देम. और या ये कोर्सेज यू कैन गो टू दीज चैनल्स. और यही रेफर किया मैंने, इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ किया नहीं है. और अनदर टिप इज़ लाइक कि अगर आपको इस डोमेन में जाना है तो आप लिंक्डइन पे पीपल को रीच आउट करो. द अनदर वे दैट आई यूज टू डू इज आई यूज टू रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन. मैं अपना रिज्यूमे शेयर करती थी, लाइक इट्स अ गुड रेज्यूमे एज अ डेटा, क्योंकि मेरे जो ग्रुप सर्कल में था नोबडी इज अ डेटा इंजीनियर, नॉर इवन मैं किसी सीनियर को जानती थी जो कि डेटा इंजीनियर था. सो यहाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज आप किसको रीच आउट करो, आप किससे पूछोगे कि am I going to correct path or not. तो आप लिंक्डइन पे रैंडम लोगों को रीच आउट करो, आप कनेक्ट करो, आप उनसे, आप उनका एक्सपीरियंस सेक्शन देखो, उसमें देखो उन्होंने जो भी टेक्नोलॉजीज मेंशन की है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने, तो प्रोजेक्ट समझने की कोशिश करो. सिमिलरली आप छोटा सा कुछ अपना मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो. अब तो AI है, आस्क ChatGPT टू गिव अ ब्लूप्रिंट टू यू हाउ यू कैन बिल्ड इट, और आप धीरे धीरे इधर उधर से रिसोर्सेज कलेक्ट करके आप खुद का कुछ बना सकते हो. सो इट्स नॉट दैट टफ कि आपको किसी एक ही लाइन में या फिर कोई कोर्स चाहिए. इट्स जस्ट यू नीड टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन दी सेपरेट थिंग्स.
इफ यू डू पाइथन एंड सीक्वल, आपका मोस्टली फर्स्ट हाफ क्लियर हो जाता है किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि ये बेसिक्स है. अगर किसी इंसान को बेसिक्स ही नहीं पता, ही कांट राइट कोड इन पाइथन, और उसको सीक्वल ही नहीं आता, तो फिर नहीं, फिर तो आप डेटा जब आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे डेटा, तो आप उस पर क्या ही ऑपरेशंस करोगे. सो वहीं रिजेक्ट हो जाता है इंसान. तो वो अच्छे से आना चाहिए. देन द सेकेंड पार्ट इज स्पार्क, क्योंकि डेटा बहुत वॉल्यूम पे होता है, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वहाँ स्पार्क आना चाहिए. एंड यही कॉन्सेप्ट्स है, जस्ट टेक्नोलॉजीज अलग है. लोग अलग अलग सेट्स यूज करते हैं. कोई AWS यूज कर रहा है, कोई एज्योर यूज कर रहा है क्लाउड में, कोई ऑन प्रेम कर रहा है, किसी ने कोई और ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज किया है पाइपलाइंस ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए. सो इट्स जस्ट डिफरेंट सेट्स ऑफ टूल. अदरवाइज बेस कॉन्सेप्ट इतना ही होता है एट अ जूनियर लेवल. सीनियर लेवल पे अगेन सिस्टम डिजाइन आ जाता है, डेटा आर्किटेक्चर आ जाता है, दैट इज अ सेपरेट गेम इटसेल्फ. सो जूनियर लेवल पे इतना काफी है. लेकिन अगर आपको पता है कि जैसे जैसे आपने बोला कि आपको इंटरव्यूज, मतलब आपके कोई दोस्त नहीं है, तो अगर उस डोमेन में इंटरव्यूज मिलना काफी मुश्किल होता है. तो क्योंकि शुरू में अगर आप कोई बड़े कॉलेज से नहीं हो और आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कुछ खासा बहुत बड़े MNC का, तो चांसेस है कि आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो शॉर्टलिस्ट तो होगा नहीं मोस्टली. हाँ, ज्यादातर तो यही होता है. कुछ जगहों पे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, 100 बार मारोगे तो वो तो 100 तीर मारे एक लग गया, वो वाला सीन हो जाता है. मोस्टली तो नहीं होता है. तो अगर वैसा सीन है, LinkedIn इज द थिंग. LinkedIn आपको आपको लाइक इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इंस्टाग्राम, आपको LinkedIn रेगुलरली ओपन करना है एवरी सेकेंड. सो इट्स लाइक आपको कनेक्ट करना है, और आप जिस डोमेन में हो, ट्राई टू कनेक्ट मोर with people more from the same domain. So उससे दो चीज हो गई. If they share anything, you will get to know, okay, these are the current things that he's working upon or he's learning. आप reach out करोगे, they'll, and try before asking referral or ऐसा, you can like if he's not that senior, you know कि like okay ये similar experience में है, और I can ask him for the resume like assessment. तो आप उनको resume assess करवा सकते हो कि okay मेरा resume is it matching or is it not matching, और आप directly reach out करो उसमें. अगर आपका resume एक बार सही है, just apply the resume link, drive में डालो, keep a proper format, okay this is my experience section, और थोड़ा soft skills भी डाल के just ask for a referral and they'll refer it. So it's like कि आपको मल्टीपल लोगों को रेफर, सेम जॉब के लिए आपको मल्टीपल लोगों को रीच आउट करना होगा, बिकॉज यू डोंट नो राइट कौन रिस्पॉन्ड करेगा कौन नहीं करेगा. सो दिस वे, बट LinkedIn इज अ ग्रेट प्लेस. लाइक मैंने तो LinkedIn से ही लोगों को रीच आउट किया है, एंड मेरे काफी कनेक्शंस ओवर द LinkedIn ही बने हैं, जिनको फिर मैंने लेटर like अच्छा connection हो गया. But it's like mostly started from LinkedIn. So LinkedIn is a great platform. Use that only for either for getting some guidance or for getting the referrals. Or the second point is आपका resume, if you're targeting big companies जिसमें हमेशा openings आती ही रहती हैं, like तो वहाँ पे आपका resume, उनका टेक स्टैक ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इधर और उधर ओपनिंग के लिए. लाइक अगर कोई और ऑर्ग के लिए वो बोल रहे हैं, फिर कोई और डेटा इंजीनियरिंग है बट डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट ऑर्ग के लिए, तो उनका टेक स्टैक रिमेन्स द सेम. सो आपको उसी हिसाब से थोड़ा रिज्यूमे टेलर करना पड़ेगा अपना. सो उसमें प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की. सो दैट इज अनदर फैक्टर. सो आपको थोड़ा टेलर्ड रिज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा. इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक दीज डोमेन्स स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लाइक AI, क्योंकि मोस्टली कहते हैं कि जैसे AI थोड़ा बहुत डेटा पे डिपेंडेंट है, थोड़ा सा काफी डिपेंडेंट है. तो उस केसेस में जैसे कितना इम्पोर्टेंस है डेटा इंजीनियर्स का. एवरी कंपनी वांट्स देयर ओन AI एजेंट्स, उनको खुद का AI चाहिए ही. सो और AI को प्रॉपर वर्क कराने के लिए यू शुड हैव प्रॉपर कंटेक्स्ट, राइट, कि आप कौन से डेटा पे उसको ट्रेन कर रहे हो. सो आप किसी भी डेटा पे यू कांट ट्रेन, राइट, यू नीड दैट डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट, लाइक इन कि okay these are the specific things which is used and which is not useful. So आप उन चीज़ों पे आप उस AI को ट्रेन कर सकते हो. सो वो एक पर्सपेक्टिव है कि आपको वो डेटा चाहिए होगा उस फॉर्मेट में. सो यहाँ पे आपका क्या होता है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो एक बार आपने डेटा फीड करके, नहीं, राइट, डेटा इज इनकमिंग एंड आउट गोइंग. वो ऐसा हो जाता है कि वो फ्लो में होना चाहिए. तो आपका जो डेटा वो रिलायबल हो, कितना रिलायबल, आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो उस डेटा पे, क्योंकि दिस डेटा इज मोर एक्यूरेट, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी वो सेग्रीगेटेड इट आउट, और जो इम्पोर्टेंट थी वो आगे पास की है. सो या दिस रोल इज रियली इंपॉर्टेंट. आई डोंट थिंक कि या AI की वजह से इट्स लाइक ऑलवेज कि 4 लोगों का काम अब 1 person विल डू, बट
the role will not vanish or something like that. Agar still there is like कि सब automate हो जाएगा, automation will be there, but it's like कि yeah, you will require people to understand that system better, राइट. वहां पे वो चीज आ जाती है. बिजनेस कंटेक्स्ट जो पास हुआ है ऊपर से, हाउ वेल यू कैन ट्रांसफॉर्म दैट डेटा दैट इट मैचेस द बिजनेस रिक्वायरमेंट. सो वो इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड मैचिंग योर डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. वहां पे इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ की प्ले ऑफ फॉर डेटा इंजीनियर. लाइक हाँ. मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई बंदा 4 साल इंजीनियरिंग किया है किसी भी डोमेन में, और अगर वो बंदा एक बंदे के सामने जाता है जिसके पास 1 साल का ही एक्सपीरियंस है इन टोटल, तब भी क्या होता है कि स्किल सेट जो 1 साल वाले बंदे का, एक्सपीरियंस वाले बंदे का काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो बंदा 4 साल कॉलेज की. कंपेयर तो नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने टेक स्टैक पे काम किया, आप उसमें सॉफ्ट स्किल्स भी आती है, राइट. उसमें बहुत सारा कॉर्पोरेट कल्चर एंड बहुत सारी चीज़ आती है, आप कैसे रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, काम कर रहे हो. सो एक्सपीरियंस पीपल को इसलिए भी हायर किया जाता है क्योंकि उन्हें प्रॉपरली बेसिक से ट्रेन नहीं करना पड़ता, राइट. अगर सिर्फ टेक स्टैक की बात करें या फिर सिर्फ स्टडी वाइज बात करें कि तो बेसिकली किसी भी इंसान को इफ दे वांट टू टेस्ट एनी एक्सपीरियंस पर्सन और इवन इफ अ फ्रेशर, वो बेस पे चेक करेंगे आपका बेस कितना स्ट्रांग है. सो बेस इज लाइक आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. दैट्स व्हाई डीएसए कम्स इनटू पिक्चर. सो आपका डीएसए इज मस्ट. मतलब आई विल से एवरी कॉलेज स्टूडेंट either on any domain, software, AI, or any other domain, apart from startups को they really want experienced people. But what I have seen कि अगर कोई और companies है like थोड़ी MNC company है, so they'll want like उनका base strong हो, they are ready to train on their tech stack क्योंकि they have that bandwidth, they have that 2 months to train you. Startup के पास they don't have this bandwidth to train you on those technologies. So what people can do is, क्योंकि आप real world project is always डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट दैट यू डू, राइट. रियल वर्ल्ड में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, मतलब सॉरी, जो आपका पर्सनल प्रोजेक्ट होता है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती. रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इज ऑलवेज डिफरेंट, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सो वो आपको एक्सपीरियंस ही दिला सकता है, आप किसी जगह पे काम करोगे. एंड लाइक इफ स्टडी वाइज ऐसे पाइथन आपको आनी चाहिए. पाइथन इज अ मस्ट. बेस अच्छा होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक आप एआई से पूरा कोड करा रहे हो. आई नो इन कंपनीज लाइक अभी तो सब जगह एआई से कोड हो रहा है, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड दैट कोड, राइट, आपको पता होना चाहिए कि ओके ये क्लासेस ऐसे लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखते हैं, ये एरे ऐसे डिफाइन करते हैं. ये बेस ही नहीं पता तो फिर दैट्स ऑफ नो यूज. सो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो सीक्वल इज वन थिंग. डीबीएमएस आई थिंक देयर इज अ सब्जेक्ट इन कॉलेज जो पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही लेमैन तरीके से पढ़ाते हैं. दैट इज नॉट द करेक्ट वे. बहुत सारी उसके पार्ट भी चीज़ें हैं, तो वो आनी चाहिए. Problem solving is a main thing. I'll still say students should focus upon. And Python is something like you can learn in 1 month. Just आपको वो logic उस Python में लिखने आना चाहिए. That is one thing. And another thing is like SQL. These two are main important things. अगर आपको डेटा रोल में जाना है तो इसी पे आपको बेसिस पे एसेस करेंगे. एंड देन यू शुड हैव सम प्रोजेक्ट कि ओके आप इन सब का चीज़ यूज़ करके एंड आप टेक्नोलॉजी यूज़ करके यू कैन बिल्ड समथिंग. आपको पता है कि एंड टू एंड फ्लो कैसे होता है किसी सिस्टम का, तो वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो वही देखना चाहते हैं वो, जस्ट आपकी लर्निंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. ओके कि यू हैव दैट आइडिया ऑन हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कॉलेजेस में इट्स बेसिकली लाइक दे वांट अस टू जस्ट लर्न थिंग्स. मतलब वही रट्टा लगाने वाली आदत है कि हाँ ये लर्न किया, एग्जाम दिया, भूल गए. उसका कोई बेस नहीं होता, राइट. उसमें कुछ सिखाते नहीं कि ओके दिस इज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज फॉर दिस थिंग. उसमें कभी ऐसा कुछ वो नहीं होता. सो बेसिकली कुछ भी बनाओ, कुछ भी क्रिएट करो, यू शुड ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन ऑफ वाई. कि अगर मैंने कुछ क्रिएट किया, अगर आपके प्रोजेक्ट में आपके पास वाई के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो वही इंटरव्यूअर आपको वही क्रैक कर लेगा. ओके यू डोंट हैव आंसर टू माई वाई कि ये क्यों यूज़ किया. सो you should always have an understanding of whatever you study or whatever you build. अगर आपको fully understanding है, so you will be easily able to crack any of the interviews. So that's why कहीं bracket होता है 0 से 2 years of experience. So mostly it's like because of certain things जो एक corporate में काम करके और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में काम करके ही आप सीख सकते हो. वहाँ पे उनको लेवरेज मिलता है और मिलना भी चाहिए स्टिल फील, बिकॉज उन्होंने उतना काम किया है तो वहाँ पे कुछ होना चाहिए, राइट. बट या अगर आपको एंट्री लेवल पे हो, आपको चाहिए, तो इतना सफिशिएंट है. दे वोंट जज ऑन टॉप ऑफ दैट. What are the projects that helped you standing out and starting out?
लाइक व्हाट हैपेंस इज, जब लोग एंटर कर रहे होते हैं हुँ, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में आपके प्रोजेक्ट्स थोड़ा मैटर करते हैं मोस्टली, कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, किस स्केल का या प्रोजेक्ट है और उसमें क्या हुँ, क्या। तो कौन से हुँ। प्रोजेक्ट्स आपके लिए स्पेसिफिकली स्टैंड आउट किए एज अ पर्सन इन इंटरव्यू? Like college time mein to I was looking for SD role, but after 1 years of experience when I was looking for a switch, so वहाँ तो मैंने अपना experience ही देखा है. I didn't keep any of my personal projects क्योंकि मेरा experience was good. सो वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की डेटा पे काम किया था, जो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट था उसके डेटा पे काम किया था. सो आई न्यू ऑल दी एंड टू एंड स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोजेक्ट राइट. तो वहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेन किया. फॉर फ्रेशर्स आई कैन से कि आप जो भी सिस्टम यूज़ करते हो, जैसे अगर आप आई कैन से आप जोमेटो यूज़ करते हो या फिर स्विगी यूज़ करते हो, तो उसमें यू नो राइट लाइक दीज आर दी कस्टमर्स, उनकी ये आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो. आप केस स्टडी, इफ यू रीड डिफरेंट केस स्टडीज लाइक आप वॉलमार्ट का केस स्टडी पढ़ो, आप एयरबीएनबी का केस स्टडी पढ़ो, और आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. आप खुद खुद का उसका बिल्ड कर सकते हो, एक डीबीएमएस सिस्टम बिल्ड कर सकते हो. एंटिटी रिलेशनशिप बना के जो हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में वो बिल्ड कर सकते हो. उसके डेटा को आप ले सकते हो, जैसे उसमें ऑर्डर्स का डेटा आ गया, उसमें कस्टमर का डेटा आ गया. सो उसको लेके आप उसको कहाँ स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और वो किस फ्रीक्वेंसी में वो डेटा आ रहा है, फिर उसमें आप क्या ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो आप वो दिखा सकते हो. देन उसको ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए आप कुछ भी लाइक एयर फ्लो है, वन थिंग इज एयर फ्लो, वो यूज़ कर सकते हो. एंड देर आर मल्टीपल टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो, ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, वो यूज़ करके आप उसको ऑर्केस्ट्रेट दिखा सकते हो क्योंकि मैंने ये ऑर्केस्ट्रेट किया है. एंड वो चीज़ें आप CSV में रख सकते हो. आप कोई भी एज्योर क्लाउड यूज़ कर सकते हो या फिर AWS की यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे फ्री क्रेडिट्स मिल सकते हैं. तो वहाँ पे आप उसका दिखा सकते हो क्योंकि ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस किए, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. और उसको आप किसी टैबलर रिपोर्ट में या फिर पावर BI रिपोर्ट से इंटीग्रेट कर सकते हो और उधर आप दिखा सकते हो कि ओके ये स्ट्रीमलाइट यूज कर सकते हो. सो वो यूज करके आप रिपोर्ट जनरेट, बेसिकली रिपोर्ट जनरेट करके आप दिखा सकते हो कि ओके ये जो मैंने डेटा आर्किटेक्चर बनाया है, डेटा सिस्टम बनाया है, ये ऐसा दिखता है, इसमें ये इंसाइट्स आ रही हैं मेरे रिपोर्ट से. सो वो आप शेयर कर सकते हो. सो दैट इज़ वन प्रोजेक्ट जो कोई फ्रेशर अगर बनाएगा तो ही विल गेट वैल्यू. उसको उस चीज़ में दे विल आस्क हिम लाइक हाउ ही वर्कड ऑन इट और उसमें क्या चीज़ें हैं. सो वहाँ पे दे विल आस्क हिम क्वेश्चंस. सो इट विल हेल्प. व्हाट हैपेंस इज लोग बस रील बनाते हैं, ए डे इन माय लाइफ ऐसे करके ओके ऊपर ओके ऊपर से। ओके. सो हाँ हाँ. आई वुड थिंक लाइक कि आप खुद बताओ कि व्हाट अ डे इन योर लाइफ लुक्स लाइक एट वीजा स्पेसिफिकली, नॉट वो ओके. रील वाला हाँ, so स्पेसिफिकली। it's not exactly, I haven't seen that, like मैंने अपने आसपास भी किसी को नहीं देखा है. So a lot of, I see a lot of people making reel at visa also. वहाँ के भी reels देखे हैं, but वो वैसा नहीं होता. It's like company to company it depends and team to team also it depends कि आपका वर्क कितना हेक्टिक है. So for my team it's like इतना हेक्टिक नहीं है. या ऐसा भी नहीं कि कुछ काम नहीं है. वर्क इज देयर, यू हैव टू वर्क. सो इट्स 8 hour यू नीड टू गिव प्रॉपरली, आपको देना पड़ता है उस काम के लिए. एंड इट्स नॉट लाइक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्री विल है इधर पे. लाइक इवन इन माय लास्ट कंपनी जो मेरी रिपोर्ट कंपनी थी, वहाँ पे मुझे बहुत काम करना पड़ता था. इट्स लाइक 10 hours हो जाते थे मुझे, बहुत सिटिंग होती थी. बट इधर इतना ये हेक्टिक नहीं है, इतना ऐसे अर्जेंसी नहीं होती कि लाइक एवरी वर्क इज अर्जेंट, ऐसा नहीं होता. यू विल गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. सो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, प्रॉपर प्लानिंग है हर चीज़ की. और इट्स लाइक कि मेरी टीम थोड़ी चिल है, तो आई 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 से आई गो अराउंड 9:30 में लॉग इन करती हूँ. सो 9 बजे कैब आती है, आई गो. एंड वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया. 10:30 पे स्टैंड अप होता है, ½ का स्टैंड अप. देन वील हैव कॉफ़ी, वो हुआ तो वहाँ पे मान लो 1 hour हो जाता है. उसके बाद अगेन यू वर्क फॉर 2 to 3 hours. उसमें बीच में मीटिंग्स वगैरह हुई जो भी हुआ तो वो कंप्लीट किया. एंड इवनिंग्स में अगर कोई मीटिंग हुई US पीपल के साथ, बिकॉज MNC यू हैव टू वर्क राइट विद US पीपल्स, तो वहाँ पे इवनिंग में शेड्यूल होती है मीटिंग्स, तो वो अटेंड, अगर एक आध मीटिंग हुई तो वो अटेंड करो. सो इट्स नॉट रियली वेरी हेक्टिक, और ऐसा भी नहीं कि कोई काम नहीं है. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ जाके चिल करना होता है. यू विल गेट टाइम टू वर्क विद ऑल ऑफ पीपल. सो काम अच्छा है, टेक स्टैक अच्छा है. ऑन प्रेम में थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा हाउ टू वर्क ऑन डेटा. और वीज़ा में एक चीज़ है कि लाइक दे हैव पेटाबाइट्स ऑफ डेटा डेली, राइट. पेटाबाइट्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वीज़ा में. सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है. एंड फॉर अ डेटा इंजीनियर आप डेटा कितना रिलायबल और कितनी फ्रीक्वेंसी से उसको प्रोसेस करते हो, दैट रियली मैटर्स. सो
इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस अगर किसी को पेमेंट सिस्टम समझना हो कि हाउ डज अ पेमेंट सिस्टम वर्क, इवन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट्स अ रियली बिग आर्किटेक्चर एंड दे रियली हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट आई अंडरस्टूड इन ओरिएंटेशन. सो ये चीज़ अच्छी है इधर पे, यू विल गेट टू नो हाउ पेमेंट सिस्टम वर्क्स. क्या होता है कि जैसे वो रील वाला तो सीन आप देख ही रखे, लोग हाँ रील बनाते हैं, फिर काफी लोग बोलते हैं भाई ये तो वैसा नहीं दिख रहा है जैसा रील में दिखाया था। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि अब वो लोग सोच के आते हैं भाई चिल है बस, 3 टाइम बस चिल करेंगे, तो वैसा तो होता नहीं। तो जैसे अगर नहीं. स्पेसिफिकली जैसे ये तो बड़े एमएनसीज की बात हो गई, तो मोस्टली हम्म. जैसे जो लोग इन रोल्स में जाना चाहते हैं डेटा जैसे रोल्स में, तो आपने पर्सनली एंटर करने से पहले कितने रिजेक्शन फेस किए? जब मैं अपना स्विच कर रही थी फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी टू दिस कंपनी, सो बेसिकली लाइक मेरी जो प्रीवियस कंपनी में ना टेक स्टैक वाज नॉट रियली अ गुड, वहाँ पर टेक स्टैक अच्छा नहीं था. सो मोस्टली स्पार्क में उतना प्रोसेस वो करते नहीं थे, डेटा प्रोसेसिंग उतनी थी नहीं उधर पे, और लो कोड काइंड ऑफ थिंग थी. तो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे स्पार्क अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई वाज फोकसिंग ऑन स्पार्क अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि स्पार्क अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. मोस्टली वही होता था क्योंकि स्पार्क का आर्किटेक्चर नहीं पता, वो आपको क्वेश्चन थ्रो करेंगे कि हम आपको इतने टीबी का डेटा दे रहे हैं, आपको कितने एग्जीक्यूटर्स लगेंगे, कितने कोर्स लगेंगे. जिन्होंने भी स्पार्क देखा होगा दे विल नो व्हाट डज दिस मीन्स. सो डेटा प्रोसेसिंग आप कैसे करोगे उसकी कंसेप्ट थॉरली पता होनी चाहिए. और मैंने जो भी लिखा है रिज्यूमे में, अगर मैंने कोई बताया अपने एक्सपीरियंस में क्योंकि आई वर्कड ऑन दिस, सो उसमें जो भी वो इंटरनली जो भी पूछ रहे हैं, सो आई शुड बी एबल टू आंसर कि वाई के आंसर्स होने चाहिए कि अच्छा वाई यू चोज दिस पर्टिकुलर थिंग, आप इससे भी कर सकते थे, आपने यही क्यों किया, आपको कितना डिफरेंस मिला, टाइम जो लैग था, या फिर मैंने कुछ ऑप्टिमाइजेशन बताया कि आई डिड दिस ऑप्टिमाइजेशन जिससे मेरा 30 to 40% प्रोसेसिंग जल्दी होने लगा. सो वाई दिस टेक्नोलॉजी, वाई नॉट अदर थिंग्स डिड यू ट्राई, तो उस पर क्वेश्चन होने लगते थे. तो बेसिकली वहाँ रिजेक्शन होते थे. बाकी पाइथन और सीक्वल और डीएसए तो हो ही जाता था. तो it again requires confidently, right, how confidently you are telling and the way of telling it, right, तो वो भी मैटर करता है. सो वहाँ पे सो स्पार्क इज अ थिंग जो सबको आना चाहिए, आई विल से, जो भी डेटा इंजीनियरिंग में घुसना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स लेवल पे भी दे आर आस्किंग इट. सो थोड़ा बहुत यू शुड नो ऑन हाउ इट वर्क्स. It's a good thing. It will help you in whichever company you will go further, because सब जगह they are using it. So वो important है. प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मीन्स लाइक काफी बड़े स्केल पर डेटा हैंडल कर रहे हैं, काफी बड़े स्केल Yeah. पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो लाइक सीवियर कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। तो क्या क्या Yeah. कॉम्प्लेक्सिटीज आपने देखी जो मतलब काफी माइंड ब्लोइंग है? 3 months ही हुए हैं मुझे वीजा में, सो आई कैन नॉट टेल एट अ हायर लेवल, बट आई कैन से लाइक बहुत सारी डेटा इंजीनियरिंग टीम है, एंड इट्स नॉट लाइक कि वीजा इज वन प्रोडक्ट, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. सो देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और उसकी मल्टीपल डेटा इंजीनियरिंग टीम है और उसके मल्टीपल क्लाइंट्स है, राइट, वीजा के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं. सो it depends on requirements, right? So like if I say particularly about my org, it's mostly on risk and identity solutions. Like we need to identify the risk, where the risk factor comes in. So it's important कि आप बताओ कि okay ये transactions हो रहे हैं, so risk की कहाँ chances है, एंड कहाँ पे आपने रिस्क देखा, या फिर और ये पूरा एक प्रोडक्ट है, राइट, जो ये बताता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो जस्ट ये थिंग है कि ये मोस्टली वो जो मेन प्रोडक्ट पे जो एसडी टीम काम करती है वो बता सकती है कि हाउ दैट प्रोडक्ट वर्क्स. वी ओनली गेट दोज रिजल्ट्स फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. ओके, जो भी उसने सेट किया है उसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड क्या रूल्स वी कैन सेट कि ओके दिस इज अ पर्टिकुलर फ्रॉड दैट हैपन, ये अगर चेक मार्क्स नहीं है तो ये फ्रॉड नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक टीम को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी है वीजा, राइट, देयर आर मल्टीपल टीम्स. सो वो प्रॉब्लम सेग्रीगेट होते होते आता है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम किसी एक ही टीम को 10-12 लोग मिलकर दे कांट सॉल्व एंड गिव इट, राइट. सो वो सेग्रीगेट होता जाता है, वो सब डिवाइड होता जाता है कि ओके दिस विल हैंडल दिस टीम विल हैंडल दिस. सो सब बहुत टफ टास्क आपको ऐसे दिखेगा नहीं, या एट टॉप लेवल इट विल बी लाइक ओके दिस वाज अ मेजर फीचर डिलीवर, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये फीचर डिलीवर हुआ है या फिर ये चीज़ सॉल्व हुई है, वो टॉप लेवल पे होता है. बट एट बॉटम लेवल आपको बहुत छोटा सा सबसेट उसका मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरा बिग पिक्चर आपको वैसे मिल जाएगा कि ओके सॉल्व दिस, ऐसा नहीं होगा. सो इट्स दैट्स व्हाई इट्स रिलैक्सिंग, राइट. अदरवाइज आपको तो पूरे टाइम काम करना पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है.
लाइक व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग एट वीजा, जो शायद मतलब पर्क्स बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम सैलरी पैकेजेस, पर्क्स क्या क्या होते हैं? पर्क्स आई कैन से, मैं ये इतना बोलूँगी बिकॉज मेरी लास्ट कंपनी में डिडंट गेट दैट वर्क लाइफ बैलेंस। आई स्टिल फील मतलब इट अगेंस्ट डिपेंड ऑन टीम पे वो डिपेंड करता है हर कंपनी में कि आपकी टीम के ऊपर वर्कलोड कितना है। बट व्हाट आई सी एट अ हायर लेवल ऑल्सो कि वीज़ा में वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग इन एमएनसी कि आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट्स आर गुड हेयर एंड यू विल गेट हंगर बॉक्स का यहाँ पे वो है, आई कैन से फूड केटरिंग सर्विसेज है, सो यू विल गेट अ सब्सिडाइज फूड हेयर एज वेल इन द ऑफिस, सो वो आपको मिलेगा। एंड कैब सर्विसेज, यू विल गेट हाइब्रिड वर्क, सो आपका हाइब्रिड रहेगा, सो 2 to 3 days यू हैव टू गो इन टू ऑफिस एंड रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स वर्क फ्रॉम होम, सो वो रहेगा। एंड या थोड़ा आपको लाइक what I'll say कि freshers को don't go for complete remote because you won't get that exposure, right? थोड़ा वर्क करने के लिए लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं एंड हाउ टू बी विथ पीपल इन ऑफिस इज इम्पॉर्टेंट। वो आपका पर्सनल स्किल सेट भी इंप्रूव करेगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लर्निंग टेक्निकली, राइट? थोड़ा आपको एज अ पर्सन भी ग्रो करना होता है, so that's why being in office important। so I'll say इन ऑफिस होना चाहिए फ्रेशर्स का, तो डेफिनेटली होना चाहिए। कौन सा घर संभालना है, तो फ्रेशर्स के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और या दीज आर दी पर्क्स। सो एमएनसीज में ये रहता है कि और टेक स्टैक गुड होगा, टेक स्टैक अच्छा होगा आपका यहाँ पे। एंड पेमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, यू विल गेट एन एक्सपोजर ऑन हाउ पेमेंट सिस्टम वर्क्स, सो वो भी आपको मिलेगा कि या ये डोमेन पे यू कैन स्विच इन टू एनी फिनटेक कंपनी एज वेल इन फ्यूचर। सो फिनटेक डोमेन का आइडिया मिलेगा कि हाउ दिस वर्क्स। These are few benefits of being at Visa. So CTC, it's like you'll get those stocks component as well. So it's like 30 to 35 you can get at Visa. So stock components are there. So वो भी they that is a major part of your CTC as well. So उसकी वजह से you will get this much, and this is what you can expect as a fresher if they're hiring freshers as well. So this is what the range you can get. कि जैसे जो एआई डेटा में इश्यूज ला रहा है या फिर अलग अलग डोमेन्स में सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज ला रहा है, जिसकी वजह से काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं ऑलरेडी, कि मतलब काम तो काफी कर दे रहा है, तो उसकी वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि कल को लाइक व्हाट आर द चांसेस ऑफ पीपल गेटिंग ले ऑफ? सो मुझे लगता है कि ले ऑफ्स आर लाइक अभी तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गए हैं लास्ट 2 years में। जितने ले ऑफ्स आई फील मोस्टली हो गए थे। इट्स लाइक कि रीस्ट्रक्चर बहुत हो रहा है। लाइक व्हाट आई फील इज कि एमएनसीज में हेरारकी बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेरारकी, तो वहाँ पे दे विल ट्राई टू कट ऑफ रीऑर्ग करते हैं। और इट्स लाइक कि जितना एआई इज़ गुड, लाइक जितना ऑटोमेशन हर चीज़ का होगा, सो इट्स लाइक वहाँ लोग करते जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई डोमेन कंप्लीटली वैनिश होगी, डोमेन्स विल बी देयर, इट्स लाइक पीपल विल रिड्यूस। लाइक अगर अभी हमारी टीम 10 या 12 लोगों की है, सो इट विल बी लाइक 4 to 5, एंड आई एम नॉट श्योर कितना जल्दी आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर आई डोंट फील इतना जल्दी आएगा। बट या जितना ऑटोमेशन होता जाएगा उतना लोगों की रिक्वायरमेंट कम होगी, राइट? बिकॉज इट्स लाइक कि ऐसा समझ सकते हैं कि हमें कंपाइलर बिल्ड नहीं करना पड़ता, राइट? इफ वी राइट सम कोड, कंपाइलर विल ऑलरेडी कंपाइल, हमें लिखने नहीं पड़ते वो क्लासेस कि ये कैसे करना है, राइट? हमें वो फंक्शंस डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे अगर कोई भी सॉर्ट फंक्शन ले लो या फिर कुछ भी ऐसा नॉर्मल कोई भी चीज़ ले लो, तो हमें लिखना नहीं पड़ता, राइट? हम बस उसका प्रॉम्प्ट देते हैं, हम उस पर देते हैं कि ओके ये एरे है, ये रेंज है, इसको सॉर्ट कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन। मतलब कि ऐसा हो जाता है, राइट? तो हम बिल्ड नहीं करते। तो वही चीज़ को ऐसे समझो कि जो भी हायर लेवल टास्क हायर लेवल पे होता जाएगा, बहुत कोड लेवल पे नहीं होगा। टिल नाउ एआई ही कोड करता है, नोबडी इज राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच, कोई लाइन टू लाइन लिखने नहीं बैठा है, बट एवरीबडी नोज व्हाट दिस कोड डस। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है। एंड रिक्वायरमेंट्स कम रहेंगे, आई स्टिल फील कि रिक्वायरमेंट्स कम रहेंगी। जैसे पहले हायरिंग होती थी, आई डोंट सी कोरोना वाली जो पीरियड की हायरिंग होती थी वो हमारे टाइम पे हुई थी, क्योंकि उसके पहले बहुत बूम था, एवरीबडी वॉज गेटिंग प्लेस्ड इन एमएनसी, सबके न्यूज़ आते थे। तो वो चीज़ हमारे टाइम पे टोटली फ्रीज थी और वो अभी भी कम है। बट स्टिल इफ you have understanding you will be still in the game, so build the understanding rather than
more focusing on एकदम राइटिंग द कोड, राइट? मल्टीपल टेक स्टैक स्विच करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी पकड़ो, जो बेस है बेस स्ट्रांग होना चाहिए, बेस विल लेट यू विन। तो बेस अच्छा होगा एंड एंड टू एंड आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो यू विल बी इन द गेम, इन द फर्दर गेम। अदरवाइज फिर वही ब्लॉकेज है। सो लाइक आपने भी काफ़ी फ्रेशर्स देखे होंगे और आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो एमएनसीज में स्विच करना चाहते हैं कि ऑलरेडी या काफ़ी भीड़ है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट पीपल मेक लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर्स या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है? फॉर फ्रेशर्स आई फील कि मतलब वही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीएसए आना चाहिए। डीएसए इज वन फैक्टर जो रिमूव नहीं होगा। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, वो ज़रूरी नहीं है, डीएसए आना चाहिए। मीडियम टू मीडियम हार्ड क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ताकि आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एलिजिबल हो। एंड आपका रिज्यूमे टेलर्ड होना चाहिए। मोस्टली रिज्यूमे टेलर्ड नहीं होगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, राइट? इंटरव्यू के चांसेस ही नहीं बनेंगे। सो रिज्यूमे टेलर्ड होना चाहिए, रिज्यूमे बहुत थॉरो होना चाहिए। आपको बार बार अपने रिज्यूमे पे असेसमेंट्स देने चाहिए क्योंकि ये रिज्यूमे टेलर्ड है कि नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो फिर इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि फ्रेशर्स को वो एक्सपीरियंस पे जज नहीं कर सकते, राइट? वो आपको एक्सपीरियंस पे जज नहीं कर पाएंगे, वो आपको सिर्फ आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज पे जज करना चाहते हैं कि आपको लर्निंग कैपेबिलिटीज है कि नहीं, आप कितना अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को। सो वो वहीं आपको जज करेंगे। तो एट अ फ्रेशर लेवल इट्स टोटली ऑन बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए एंड स्टिल फोकस ऑन बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि वहीं रिजेक्शन हो जाएगा। वो आपके प्रोजेक्ट्स पे आएंगे ही नहीं जब तक आपको 2 दिन क्वेश्चंस पूछे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो फिर क्या ही पॉइंट है? बिकॉज ही डिडंट स्टडी ऑन एनीथिंग, राइट? तो पढ़ना पड़ेगा। इट्स लाइक कि और कोडिंग नहीं छोड़नी है, ऐसा नहीं है कि सब एआई से लिखा रहे हैं। मतलब डू लीड कोड पे कोड करो। जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो, ट्राई टू, अगर आप कॉपी पेस्ट भी करना चाह रहे हो तो कॉपी पेस्ट करो एआई से लेके जो भी, बट ऐसा मत करो कि बस प्रॉम्प्ट दिया और उससे ही पूरा लिखा दिया और उसी को चला रहे हैं। नहीं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड लिखता है, इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड। इवन अगर आप किसी को शो किया और किसी ने पूछ लिया ये क्या गया है, तो यू वोंट बी एबल टू टेल इट। सो जस्ट टेक व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाट ही इज गिविंग, जो भी एआई दे रहा है उसको उसमें लिखो, उसको खुद से बनाओ। वो जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ट्राई टू बिल्ड इट योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि बस टैप टैप कर करके कर्सर से पूरा प्रोजेक्ट बनवा लिया। सो वैसा नहीं करना है, खुद से यू हैव टू मेक दैट प्रोजेक्ट, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाई वी आर यूजिंग दीज थिंग्स। सो या वो चीज़ रहेगी, एक फ्रेशर को स्टैंड आउट करेगी, आई फील। व्हाट इज द मैसेज दैट यू वांट टू गिव जो लोग मतलब ले ऑफ से परेशान है या फिर जो लोग फ्रेशर्स? I can relate to this question a lot because when I was trying to switch into a good company, I was already at a decent company, but I was not satisfied. Like internal satisfaction भी होता है. Like I was not satisfied with the role and even the CTC that I was getting, right. So बहुत सारे factors होते हैं, सबके होते हैं, and बहुत patience लगता है. It's a really patience game. आपको बहुत patient होना पड़ता है कोई भी, क्योंकि there was a time जहाँ पे last year itself, like I can say October to November, I was rigorously applying. मतलब मैंने बहुत applies किए, दिन में मेरे 50 to 60 applies होते होंगे, more than that होते होंगे, but I was not even getting a single call. एक भी call नहीं आ रहा था मुझे. So it was like कि am I not enough, like मेरा रिज्यूमे सही नहीं है, क्या कहाँ गलत जा रही हूँ, जबकि मेरा रिज्यूमे सही था, आई गॉट इट वैलिडेटेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। उसके पहले भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे, बट वो टाइम इतना पीक था एंड इट वाज लाइक कि एंड इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि उसे अपना काम भी करना होता है। वो वहाँ पे भी अपना परफॉर्मेंस डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि दे विल क्वेश्चन देयर ऑल्सो, राइट, कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन होने लगते हैं, और प्लस आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने होते हैं वो पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए, एंड उतना अप्लाई करने के लिए। एंड इट, और जैसा आप काम करते हो और पढ़ना जो होता है इट्स डिफरेंट, राइट। थोड़ा आपको टेक्निकली उसको पॉलिश करना होता है ताकि आप उसको इंटरव्यू में बोल सको, तो वो चीज़ होती है। तो बहुत पेशेंस लगता है, बहुत सारे कॉल आएंगे, बहुत बार आप घोस्ट हो जाओगे कि आपको कॉल किया लेकिन दोबारा कॉल ही नहीं आया HR से। सो इट्स लाइक कि कहाँ गलत चला गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद कुछ नहीं बताया कि इधर आई एम रिजेक्टेड और सिलेक्टेड और होल्ड पे रख रहे हो, क्या कर रहे हो, यू शुड इन्फॉर्म, राइट। और एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने एक कंपनी में दिया,
आई न्यू मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था क्योंकि इंटरव्यू ने सामने से बोल दिया था यू वर रियली गुड। तो वहाँ पे हो गया था, सेकंड राउंड भी हो गया था, सब सही हो गया था, बट आई डिडंट गेट एनी कॉल फ्रॉम देयर एंड। मैंने खुद भी कॉल किया था, 2 बार कॉल किया, दे डिडंट रिस्पॉन्ड। आफ्टर 1 मंथ दे कॉल्ड मी क्योंकि येस सॉरी फॉर द डिले, दे वर वेरी गुड विद द प्रोफाइल, बट द थिंग इज दे वर लुकिंग फॉर 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस। सो आई वाज लाइक कि ओके दिस कुड बी इन्फॉर्म मी अर्लियर आल्सो, राइट? बट मैं, और जबकि मुझे इन्फॉर्म यही किया था कि इट वाज लाइक 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मिड में था, but they needed someone with 3+ years of experience. I said like why does it matter if I was good at interview, right? So वो matter नहीं करना चाहिए, but still they said like this and I had visa offer by then. So ऐसा भी होता है, so it's a patience game। और layoff is like nobody is certain, like कभी भी किसी का भी हो सकता है, and companies, I'm not sure if they are very reliable on their decision that they are taking. So layoffs, it's not like it should be you should be okay with it, it's like happening to everybody, it's not like something was wrong with you, it was just some business decision that they had to take, and it was never on the candidate capability. So capability pe you should never doubt, you should just keep doing lead code every day and be up to date for the market. You should never be stagnant. If you feel like your tech stack is stagnant or your current company is making you stagnant, do not stay there for even for a single day. Just try making your self up to the market and just keep giving interviews. That is the only advice. So you will be in a good position by then.